ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಕುರುಬರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ, ಅವರು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ ಎಂದರು. ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ದುಡಿದು ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಟ್ಟಾಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿಎಲ್ ನಾಗೇಶ್, ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಯಾದವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ ಮಹೇಶ್, ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಷ್ಪಗೌಡ, ಕೆಸಿ ಶಂಕರಗೌಡ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿರವರು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು. When I was a student in Agricultural University in third year, really I faced so many problems by talking English, conversation, by communication to others. I faced a lot. And that day, I want to start English medium in our village to give good education. Only that intention I started this institution, sir. Nothing else. So I am very happy. I am facing so many problems. कल रात भी थोड़ा एक हिंदी मूवी देखे सर. हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है तो हिंदी मूवी सलमान खान का मूवी देखने के बाद इधर हिंदी में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा. बहुत खुश है सर आप इधर
जाने का मेरे का ये स्कूल है ना, ये स्कूल नहीं सर। एजुकेशन डे सेरेमनी में उपस्थित नवोदय एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री के.सी. सुंदरगौड़ा जी, प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमती पुष्पा जी, नवोदय एजुकेशन ट्रस्ट परिवार के समस्त सदस्यगण, सम्माननीय अतिथिगण, प्यारे प्यारे बच्चों, अन्य उपस्थित सभी महानुभावों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि बलरामपुर जिले के दूर गाँव में जन्मे समाज से सरल व्यक्तित्व के धनी कृषि विशेषज्ञ श्री के.सी. शंकर गौड़ा जी द्वारा 1987 में ग्रामीण किसानों और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय संस्था की स्थापना की। स्थापना के समय से ही ये संस्था श्री के.सी. शंकर गौड़ा जी के मार्गदर्शन में और पुष्पा जी की देखरेख में लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय, स्वतंत्र सोच और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षा देने हेतु शिक्षित करने के साथ साथ छात्रों में बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमता विकसित करने का कार्य कर रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 100% उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण इस संस्था की गणना श्रेष्ठ संस्थानों में होती है। संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रशंसनीय कार्य एवं प्रयासों के लिए मैं संस्था परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं जब यहाँ आया तो एंट्रेंस से ही इस प्रकार से स्वागत कार्यक्रम वगैरह हुए, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छी परेड भी की है और उत्साहजनक वातावरण में इस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस संस्था की छात्रा एम.एस. भावना ने 625 अंकों में से 617 अंक प्राप्त कर इस संस्था को गौरवान्वित किया है। मैं किसान परिवार की बेटी भावना को बधाई और उनके जीवन भविष्य की कामनाएं। 10th बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहा है और अच्छा रिजल्ट रहा है। अच्छे अंकों से छात्रों ने सफलता प्राप्त की है।
जुड़कर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समृद्धता की शिक्षा देती है। भारत पुरातन काल से ही ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी। इस कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था और हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त थी। इस कारण देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जीवन की सफलता में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। व्यक्ति का विकास शिक्षित होने पर अच्छा होता है। शिक्षा हमें विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता है और इस देश का भविष्य है। इसलिए उनकी शिक्षा एवं कल्याण और उनके नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक बालिकाओं के प्रथम गुरु के माता पिता और परिवार के लोग होते हैं। बच्चों को प्रथम शिक्षा अपने परिवार से मिलती है। परिवार से ही वो संस्कार ग्रहण करते हैं। इसी नींव पर बालक की शिक्षा दीक्षा तथा संपूर्ण जीवन की योग्यता और ज्ञान का भार खड़ा होता है। बाल्यकाल में बालक को सुनाई गई प्रेरक कथा कहानियां उपदेश को दिया गया ज्ञान जीवन भर उसका मार्गदर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार पुल पर खड़े लड़कों को नदी में बह रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाकर देखा। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लगा। उन्होंने एक लड़के की बंदूक ली और लगातार 12 सही निशाने लगाए। यह देख करके लड़कों ने पूछा, आप ये कैसे कर लेते? स्वामी जी बोले, जो भी करो पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, तुम भी कभी असफल नहीं होंगे। पढ़ाई करते समय जो भी गतिविधियां अपन संचालित करते हैं उसमें भाग लेते हैं, एकाग्रता से उस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप ये अनुभव स्वयं देख करके करते हैं। मैं शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे गीली मिट्टी जैसे होते हैं, उनको आप जिस आकार में ढालना चाहें डाल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी असीम शक्ति को समाज कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें। भारत युवाओं का देश है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 33 वर्ष से कम है। युवा देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं से अपेक्षा है कि वे देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। देश ने आजादी के बाद सभी क्षेत्रों में इन 75 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे और अधिक मजबूती प्रदान करके विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश संकल्पित है।